Hello students. We have already started with differentiation and we have seen the parametric functions. We were on exercise number 1.4. Let's continue with this exercise. We have completed with group 1 questions. So we are starting with group 2 questions now. So let's look at group 2 questions. Here we want to find out dy by dx if you are given the parametric function x in terms of some parameter, y in terms of parameter, but at a particular value of the parameter you want to find out the value of dy by dx. So starting with the second group, first question. So here we are given x is equal to cosec square theta, y is equal to cot cube theta, theta is equal to pi by 6. At this particular point we want to find out what is dy by dx. So let's see in the solution. So since here in the solution, let us take the value of y first. So in the solution we are given the value of y is equal to, we are given cot cube theta, and we are also given x is equal to cosec square theta. First let us differentiate y with respect to theta. So differentiating y with respect to theta, we get dy by d theta is equal to cot cube. सो क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ थीटा. So let's see what happens after the differentiation. This value is 3 into cot square theta multiply by derivative of cot is minus of cosec square theta. So that term we can write it as dy by d theta is equal to, this value is minus 3 into cot square theta multiply by cosec square theta. ये हो गया हमारा dy by d theta. अब हमें चाहिए है dx by d theta. So let's see what is the value of x. x का वैल्यू दिया हुआ है cosec square theta. So again we are differentiating this x with respect to theta. तो हमें मिल जाता है dx by d theta is equal to cosec square दिया है तो ये हो जाएगा 2 times cosec of theta into derivative of cosec theta. So let's see what is the derivative over here. So that is going to give us the value as, this is 2 into this is cosec theta multiply by derivative of cosec हो जाता है minus of cosec theta into cot theta. Now we can write dx by d theta is equal to, so minus sign बाहर ले लेते हैं, this is 2 times cosec theta into cosec theta हो जाता है cosec square theta multiply by cot of theta. अब हमें चाहिए है dy by dx, राइट. सो विल अप्लाई द पैरामेट्रिक फॉर्मूला. ये हमें मिल जाता है dy by dx इज इक्वल टू, दिस इज dy by d theta होल अपॉन dx by d theta. सो विल पुट द वैल्यू ऑफ dy by d theta. dy by d theta हमारे पास है 3 इंटू दिस इज cot स्क्वायर theta इंटू cosec स्क्वायर theta होल अपॉन dx by d theta हमें मिला है -2 इंटू दिस इज cosec स्क्वायर theta इंटू cot ऑफ theta. कैंसिलेशन कर देते हैं तो हमें मिल जाता है dy by dx इज इक्वल टू, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस, यहाँ पे cosec स्क्वायर टोटली गेट कैंसिल, वन ऑफ द cot गेट कैंसिल, माइनस साइन कैंसिल हो गया तो हमें मिला 3/2 टाइम्स cot ऑफ थीटा. तो ये हो गया dy by dx. बट वी डोंट वांट ओनली dy by dx. हमें क्या चाहिए है dy by dx at theta is equal to pi by 6. So we'll find out dy by dx at
theta is equal to pi by 6 is equal to this is 3/2 as it is. थीटा के जगह पे हम डाल देंगे पाई बाय 6. अब कॉट पाई बाय 6 का वैल्यू हमें मालूम है. लेट्स पुट द वैल्यू. दिस इज 3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉट ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू हो जाता है रूट ऑफ 3. So that is going to give us 3 times root of 3 divided by 2 and that is the answer. I hope you have understood this. पूरा मेथड सेम ही है अप टू दिस स्टेप. यहाँ तक सेम है व्हाट वी हैव डन इन ग्रुप नंबर 1 क्वेश्चन. यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है तो हमने थीटा का वैल्यू या फिर जो पैरामीटर दिया है उसका वैल्यू हमने पुट कर दिया है. लेट्स टेक वन मोर फ्रॉम दिस ग्रुप. वी आर लुकिंग एट सेकेंड ग्रुप सब क्वेश्चन नंबर 5. So let's take what is the value of y and x given to us. हमें दिया है y is equal to 3t minus cos of pi t. अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं with respect to t. So that is going to give us dy by dt is equal to 3 remains as it is. t का डेरिवेटिव with respect to t is 1. So this is minus कॉट ऑफ एफ ऑफ टी है ये. सो कॉस का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई टी. लेकिन पाई टी फंक्शन है तो उसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना है. दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पाई टी विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो दैट वैल्यू इज गोइंग टू गिव अस दिस इज 3 प्लस ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई टी. और पाई टी का डेरिवेटिव अगर निकाले तो पाई टी का डेरिवेटिव हो जाता है पाई. सो द टर्म कैन बी रिटन एज 3 प्लस पाई इंटू साइन ऑफ पाई टी. ये हो गया हमारा dy बाय dt. अब हमें चाहिए है dx बाय dt. सो फॉर दैट वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ x. x इज इक्वल टू t प्लस 2 इंटू साइन ऑफ पाई टी. अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे with respect to t. As we differentiate we get dx by dt is equal to derivative of t with respect to t is 1 plus 2 remains as it is. sin का डेरिवेटिव हो जाएगा cos of pi t and pi t is a function so derivative of pi t. अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो ये हो जाता है 1 प्लस 2 इंटू दिस इज कॉस ऑफ पाई टी मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ पाई टी हो जाएगा पाई. सो दैट इज गोइंग टू गिव अस dx बाय dt इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू पाई इंटू कॉस ऑफ पाई टी. अब हमारे पास dx बाय dt है, हमारे पास dy बाय dt है. पैरामीट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला है dy बाय dx is equal to this is dy by dt whole upon dx by dt. So let's put the value of dy by dt. dy by dt हमारे पास है 3 plus this is pi into sin of pi t whole upon dx by dt का वैल्यू हमारे पास है 1 plus 2 pi into cos of pi t. अब देखते हैं t का वैल्यू क्या दिया है. सो दिस इज अवर dy बाई dx. इसको ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बट वी वांट द डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू 1/2. सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 1/2. दैट विल गिव अस dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू दिस इज 3 प्लस पाई इंटू साइन ऑफ पाई मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाता है पाई बाय 2 होल अपॉन दिस इज 1 प्लस 2 पाई इंटू ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज पाई बाय 2. सो दैट इज गोइंग टू गिव अस दिस इज 3 प्लस पाई इंटू साइन पाई बाय 2. साइन पाई बाय 2 का वैल्यू हो जाता है 1 डिवाइड बाय दिस इज 1 प्लस 2 इंटू पाई. कॉस ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू हो जाता है 0. So that is going to give us dy by dx at t is equal to 1/2 is equal to this is 3 plus pi divided by 1. So divide by 1 लिखने की जरूरत नहीं है. We can write the term as it is. So ये हो गया हमारा आंसर. I hope you have understood group 2 questions.
Now we look at group 3 questions. Group 3, the questions are show that, so some terms of x and y are given to us as a parameter function and we want to show that dy by dx is equal to some term. So let's start with group 3 questions. Few sums I'll be solving in group 3. Group 3, the first question is given as if x is equal to a into root of sec theta minus tan theta, y is equal to a into root of sec theta plus tan theta, then show that dy by dx is equal to minus 1 by x. So same method हम apply करेंगे. So let's take in the solution what is the value of y given. Y हमें दिया हुआ है a into root of this value is sec of theta plus tan of theta. अब हम इसको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, विल डायरेक्टली डिफरेंशिएट द टर्म विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. एज वी डिफरेंशिएट हमें मिल जाता है, वी गेट dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू रूट ऑफ एफ एक्स का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ sec of theta plus tan of theta multiply by this is derivative of sec of theta plus tan of theta. So that value is same as a into 1 upon this is 2 times root of sec theta plus tan theta मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा का अगर डेरिवेटिव देखें, सेक थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस टैन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विल गिव अस सेक स्क्वायर थीटा. So now the term can be written as this is a divided by 2 times root of this is sec of theta plus tan of theta multiply by न्यूमरेटर से हम sec theta कॉमन ले सकते हैं, तो न्यूमरेटर में sec का जो टर्म है आगे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा sec of theta plus this is tan of theta. तो अगर हम न्यूमरेटर देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास है sec theta plus tan theta, डिनोमिनेटर में रूट है of the same term, so we can say that dy by d theta is equal to ये हो जाएगा a into this is sec of theta multiply by root of sec theta plus tan theta whole upon 2. तो ये हो गया हमारा dy by d theta. बट लेट्स लुक एट द टर्म ओवर हियर. अगर हम y का वैल्यू देखें यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या है a इंटू रूट ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा. यहाँ पे भी हमारे पास वही टर्म है, सी a इज देयर विथ अस, रूट ऑफ सेक ऑफ थीटा प्लस टैन सेक थीटा प्लस टैन थीटा भी हमारे पास है. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाता है द वैल्यू इज सेक ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 2. ये पूरे टर्म को हमने साथ में ले लिया है a एंड रूट, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू एज y. अब ये हो गया हमारा dy बाय डी थीटा. नेक्स्ट वी वांट व्हाट इज dx बाय डी थीटा. सो लेट्स टेक व्हाट इज x. x का वैल्यू दिया है a इंटू दिस इज रूट ऑफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा. ये भी वैसा ही हम सॉल्व कर रहे हैं. So differentiating again with respect to theta will give us dx by d theta. So dx by d theta is equal to a तो वैसे ही रहेगा as it is, रूट का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ दिस इज सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा multiply by this value is derivative of sec of theta minus tan of theta. So again we'll find the derivative. तो ये हो जाएगा a divided by 2 times root of sec of theta minus tan of theta
यहाँ पे sec थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है sec ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ थीटा माइनस tan का डेरिवेटिव हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहाँ पे ये वाले स्टेप में हमने सेक थीटा कॉमन लिया था, अब यहाँ पे हम माइनस सेक थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू सेक ऑफ थीटा डिवाइड बाय दिस इज 2 इंटू रूट ऑफ, ये हो जाएगा सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा। न्यूमरेटर के ये ब्रैकेट से हमने माइनस सेक कॉमन ले लिया है, तो बचेगा यहाँ पे हमारे पास सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा। अब इफ यू लुक एट द न्यूमरेटर टर्म एंड द डिनोमिनेटर टर्म वापस कैंसिल कर सकते हैं, सो वी कैन गेट dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस ए इंटू सेक ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू दिस इज रूट ऑफ सेक ऑफ थीटा माइनस टैन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे अगर देखें, इफ यू लुक एट द टर्म, a is there with us, we are having root of sec of theta minus tan of theta जो कि यहाँ पे हमारे पास है। So we'll resubstitute the value of x over here, तो ये हमें मिलता है dx by d theta is equal to, माइनस साइन वैसे ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा sec theta डिवाइड बाई 2 और ये a और ये रूट दोनों साथ में ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा the value is x। अब हमारे पास dy बाई डी थीटा है, हमारे पास dx बाई डी थीटा है, पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा होल अपॉन dx बाई डी थीटा। लेट्स पुट द वैल्यू, सो dy बाई डी एक्स का वैल्यू, dy बाई डी थीटा का वैल्यू हमारे पास है, दिस वैल्यू है सेक ऑफ थीटा इंटू वाई होल अपॉन 2 एंड dx बाई डी थीटा का वैल्यू है माइनस ऑफ सेक ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स। कैंसिलेशन कर देते हैं, दिस सेक थीटा बाई 2, ये पूरा सेक थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या है, हमें मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हियर द टर्म रिमेनिंग ओवर हियर इज माइनस y और डिनोमिनेटर में बचा है x and hence it is proof, यही हमें प्रूफ करना था and the sum is over। I hope you have understood this method। This is a simple method, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, direct differentiation किया and we have got the answer। Let's take another question from group 3। Next we are looking at second sub question of group 3। यहाँ पे हमें दिया है, इफ वी आर गिवन x इज इक्वल टू ई रेस टू साइन ऑफ 3t, y इज इक्वल टू ई रेस टू कॉस ऑफ 3t, हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई लॉग ऑफ y। सो लेट्स सी हाउ दिस हैज टू बी प्रूफ्ड। सो अगेन इन द सॉल्यूशन, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ y। y हमारे पास है e रेस टू कॉस ऑफ 3t, राइट, एंड लेट मी राइट डाउन द एक्सटर्म ऑल्सो ओवर हियर, x हमें दिया है e रेस टू साइन ऑफ 3t। अब अगर दोनों टर्म देखे, e रेस टू एफ एक्स है दोनों जगह पे, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और हमें जो dy बाई डी एक्स में चाहिए है तो log x और log y चाहिए है, तो हम ये दोनों फंक्शन में लॉगरिथम ले लेते हैं। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों टर्म के लिए ले रहे हैं, तो हमें मिल जाता है, हियर वी गेट log ऑफ y इज इक्वल टू, दिस इज log ऑफ e रेस टू कॉस ऑफ 3t। उसी तरह से हमें मिलता है log ऑफ x इज इक्वल टू, हियर वी गेट log ऑफ e रेस टू साइन ऑफ 3t। So here we can say log of y is equal to cos of 3t into this is log of e। log of e का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, हमें मिलता है log of y is equal to, we get cos of 3t। उसी तरह से यहाँ पे हमें मिलेगा log of x is equal to sin of 3t into this is log of e।
लॉग ऑफ ई का वैल्यू 1 पुट किया तो हमें मिलता है लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हियर द वैल्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ 3t। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ द टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू t। सो पहले y के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/y। y यहाँ पे log है तो ये हो जाएगा 1/y। y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, सो दैट विल गिव अस dy by dt इज इक्वल टू कॉस ऑफ एफ ऑफ टी है, तो कॉस का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन ऑफ 3t। 3t फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3। तो हमें मिला है dy बाई डी टी इज इक्वल टू -3। ये y जो डिनोमिनेटर का हम दूसरे साइड लेके जा रहे हैं, 3y इंटू दिस इज साइन ऑफ 3t। लेकिन यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं लॉग ऑफ एक्स का। तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x इंटू दिस इज dx बाई डी टी इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस ऑफ 3t और 3t का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। अब हमें ये x नहीं चाहिए तो हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल टू दिस इज 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 3t, right? Now let's look at this term. If you look at this one and if you look at this one, हमें मिल जाता है साइन 3t का वैल्यू, यहाँ पे साइन 3t का वैल्यू। यहाँ पे अगर देखें तो हमें cos 3t का वैल्यू मिल जाता है। लेट्स पुट दिस इक्वेशन 1 and 2. So from 1 and 2 what do we get? हमें मिल जाता है dy बाई डी टी इज इक्वल टू -3y। साइन 3t का वैल्यू है log ऑफ x, तो ये हो जाएगा log ऑफ x। और उसी तरह से हमें मिल जाता है dx बाई डी टी। सो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू cos ऑफ 3t। cos ऑफ 3t का वैल्यू है log ऑफ y, सो दिस वैल्यू इज log ऑफ y। अब हम पैरामेट्रिक फॉर्म अप्लाई करते हैं। So we know that dy by dx is equal to, we can say dy by dt whole upon dx by dt। अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें मिलता है dy by dx is equal to, dy by dt का वैल्यू मिला हमें -3y इंटू दिस इज log ऑफ x होल अपॉन dx by dt का वैल्यू है 3x इंटू log ऑफ y। 3 कैंसिल कर देंगे, हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हियर वी गेट y इंटू लॉग ऑफ x डिवाइड बाय x इंटू लॉग ऑफ y एंड हेंस इट इज प्रूव्ड एंड डन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब यहाँ पे हमने लॉग लिया है, अगर आपको लॉग नहीं लेना है यू कैन प्रोसीड इन द सेम वे एंड यू विल गेट द आंसर। Let's take next question from this group. We are looking at group sub question number 4 of group 3. So here we are given the value of y। y का वैल्यू क्या दिया है? y का वैल्यू दिया है y इज इक्वल टू a रेज टू साइन क्यूब t, और हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब t। Now we'll directly differentiate the term with respect to t. So हम इसको differentiate कर रहे हैं with respect to t, दोनों terms को हम कर रहे हैं, तो हमें मिल जाता है dy बाई डी टी इज इक्वल टू a remains as it is, साइन क्यूब है तो ये हो जाएगा 3 इंटू दिस इज साइन स्क्वायर t मल्टीप्लाई बाय दिस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ t। उसी तरह से हमें मिल जाता है dx बाई डी टी इज इक्वल टू a इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर t इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ t।
सो लेट्स फाइंड आउट दैट डेरिवेटिव. हमें मिल जाता है dy बाई डी टी इज इक्वल टू a इंटू 3. हम आगे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर t. डेरिवेटिव ऑफ साइन t हो जाएगा कॉस ऑफ t. उसी तरह से यहाँ हमें मिलेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू a मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर t. कॉस t का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन ऑफ t. अब हमारे पास dy बाई डी टी है, हमारे पास dx बाई डी टी है. लेट्स पुट द वैल्यू. सो यहाँ हम लिखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्मूला. सो दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी. लेट्स पुट द वैल्यू ओवर हियर. तो ये हो जाएगा दिस इज 3a इंटू साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ टी होल अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास है माइनस 3a इंटू दिस इज कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन ऑफ टी. कैंसिलेशन कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू. नाउ व्हाट ऑल टर्म्स आर कैंसिलिंग. लेट्स कैंसिल. यहाँ पे 3a कैंसिल हो गया, 3a कैंसिल हो गया. वन ऑफ द साइन गेट कैंसिल, वन ऑफ द कॉस गेट कैंसिल. बचा हमारे पास है साइन ऑफ t डिवाइड बाय हियर वी हैव कॉस ऑफ t. लेकिन हमें ये नहीं चाहिए है व्हेन वी प्रूफ dy बाई dx. हमें प्रूफ करना है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन x रेज टू 1/3. तो हमें y और x में आंसर चाहिए है, ये नहीं चाहिए. सो लेट अस कॉल दिस वैल्यू एज माइनस साइन ओवर हियर. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करेंगे, साइन t और cos t का वैल्यू x और y में फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. अब हमारे पास है सिंस वी आर गिवन y इज इक्वल टू a इंटू साइन क्यूब t, तो हम लिख सकते हैं साइन क्यूब t इज इक्वल टू y अपॉन a. लेकिन हमें साइन क्यूब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइन t चाहिए. तो दोनों साइड क्यूब रूट ले लेते हैं. तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ t इज इक्वल टू y अपॉन a होल रेज टू 1/3. एंड द सेम थिंग कैन बी डन विथ x ऑल्सो. x हमारे पास है a इंटू कॉस क्यूब t. तो हम लिख सकते हैं cos cube t is equal to x upon a, and that we can write that cos of t is equal to x upon a whole raised to 1/3. अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू है जो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज. साइन t का वैल्यू हमारे पास है y अपॉन a होल रेज टू 1/3 डिवाइड बाय कॉस टी का वैल्यू हमारे पास है x अपॉन a होल रेज टू 1/3. हम लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है माइनस ऑफ दिस इज y अपॉन a डिवाइड बाय x अपॉन a होल रेज टू 1/3. a कैंसिल कर दिया तो हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन x whole raised to 1/3, and hence it is proved. I hope you have understood this. Then let's take another problem from group 3. We are looking at 8th sub question of group number 3. Here we are given x is equal to 2bt divided by 1 plus t square, y is equal to a into 1 minus t square divided by 1 plus t square, and we want to show that dx by dy is equal to minus b square y divided by a square x. अब अगर हम ये वाले सम को देखें और अगर हम x और y को कंसिडर करें और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे देन इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ था सब्स्टिट्यूशन करना. सो हियर फॉर दिस सम विल बी अप्लाइंग द सब्स्टिट्यूशन. सो लेट्स लुक एट द सम. हियर in the solution let us consider what is given as x and what is given as y.
तो हमारे पास है x इज इक्वल टू 2bt डिवाइड बाय दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर, और हमारे पास है y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दोनों जगह पे 1 प्लस टी स्क्वायर दिख रहा है और हमें पता है 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा, तो सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं। वी डू द सब्स्टिट्यूशन एज t इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। सो एज वी पुट इट इन x एंड y, हमें मिल जाता है x का वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू 2b इंटू टैन ऑफ थीटा डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, and we can get y is equal to a multiply by 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta। अब ये दोनों भी फॉर्मूला है, सो वी कैन राइट द टर्म एज x इज इक्वल टू 2 tan theta डिवाइड बाय 1 प्लस tan square theta हो जाता है साइन ऑफ 2 थीटा। सो b को वैसे ही रखते हैं, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। उसी तरह से y अगर देखे तो ये जो ब्रैकेट है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये पूरा टर्म हो जाता है दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा। अब हमें x भी थीटा में मिला और y भी थीटा में मिला है, वी कैन डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एज वी डिफरेंशिएट हमें मिल जाता है dx डिवाइड बाय डी थीटा इज इक्वल टू बी एज इट इज साइन ऑफ 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2। उसी तरह से हमें मिलता है dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू 2 एज इट इज कॉस ऑफ 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, वापस 2 थीटा फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव 2। सो दैट वे वी कैन राइट एज dx डिवाइड बाय डी थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2b इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, और हमें मिल जाता है dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2a इंटू दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा। अब हमारे पास dx बाय डी थीटा है, dy बाय डी थीटा है, हमें चाहिए क्या है dx डिवाइड बाय dy चाहिए है, तो पैरामेट्रिक फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। सो सिंस वी नो दैट dx डिवाइड बाय dy इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे dx डिवाइड बाय डी थीटा होल अपॉन dy बाय डी थीटा। जो हमने प्रीवियस dy बाय dx के लिए किया था उसी को उल्टा किया है यहाँ पे। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज है, लेट्स पुट द वैल्यूज। सो सिंस वी आर हैविंग dx बाय डी थीटा एंड dy बाय डी थीटा, हमें मिल जाता है dx डिवाइड बाय dy इज इक्वल टू dx बाय डी थीटा का वैल्यू है 2b इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, और dy बाय डी थीटा का वैल्यू है माइनस 2a इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। 2 कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलता है dx डिवाइड बाय dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ b इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय ये है a इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। लेकिन अगर हम देखें हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें कॉस और साइन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए है y और x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम यूज करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे साइन 2 थीटा का वैल्यू और कॉस 2 थीटा का वैल्यू। सो लेट्स सी, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू b इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, और इक्वेशन 2 हमारे पास है y इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। सो हियर वी कैन से साइन 2 थीटा इज इक्वल टू x अपॉन b, एंड वी कैन से कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू y अपॉन a। अब ये दोनों वैल्यू मिल गए, we'll call this as इक्वेशन स्टार। ये इक्वेशन स्टार में दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार हमें मिल जाता है dx डिवाइड बाय dy इज इक्वल टू, सो लेट्स पुट द वैल्यूज। एज वी पुट द वैल्यू,
ये हो जाएगा माइनस बी इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा का वैल्यू हमारे पास है y अपॉन ए होल अपॉन ए वैसे ही रहेगा। साइन ऑफ 2 थीटा का वैल्यू है x अपॉन बी। नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डाल देंगे तो हमें मिल जाता है dx डिवाइड बाई dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये b ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर इंटू वाई होल अपॉन दिस a विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस a। तो ये हो जाता है a स्क्वायर इंटू एक्स एंड हेंस इट इज प्रूफ्ड and done. I hope you have understood this question. So remaining sums of exercise 1.4 third group and second group, whatever are remaining sums are your assignment. Please try and complete them. We'll stop over here for the day, students. Have a nice day and thank you.